ऑलराइट, टुडे स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस उससे स्टार्ट करेंगे। स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस, ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें अपन ने कि पिछले बार जो मल्टीप्लिकेशन किया था दैट वाज समथिंग f इंटू जी ऑफ x was equal to f of, well, एक मिनट, हाँ, that was equal to f of x times g of x. All right. Now special case of multiplying two functions is that thing जिसमें my one of the function, मेरा कोई दोनों में से एक function becomes constant. इसका मतलब क्या, either f of x और g of x, either both of them, इसमें से कोई भी एक की वैल्यू कांस्टेंट होंगी. So let's say for the sake of our understanding, let f of x to be equal to c, some constant, any constant. All right, then I had with me f times g of x, that should be equal to f of x times g of x. All right, now since my f of x is constant, then this product turns out to be c g of x, or I could rather just write it in short. I could just rather, मैं इसको बस ऐसे ही लिख दूँ तो it's way better for me, that if either one of the function is constant, then and let's say that function's value is c, then the multiplication of that two constant will give me c times g. So multiplying a function with constant is a special case of multiplying two functions. Although यहाँ पे constant को हम numbers बोलते हैं, यहाँ पे इसको special इसलिए बोला गया है because the only reason being that it is being called special is because if you may give me, yeah, all the values on this x-axis are constant, and all we call them as real number. But over here, although ये f of x is my constant, what am I calling it as a function only? मैं इसको function ही बोल रहा हूँ, and that is why it is a special case in which there is a multiplication of two function, and in that particular case one of the function is constant. It might be g or it might be f. So in such case अपने इसमें अगर c f एक constant है, ऐसा एक केस हो सकता है कि we have f times c, or I can rather write c times f, in which my c, which is constant, and that is g of x. So ये है special case of multiplying two functions. Let's just take an example and sum up this concept. इस concept को sum up करने के लिए मेरे पास में एक example है. We shall finish it up in 2 minutes now. F of x is equal to 7 and g of x is equal to, let's say from the previous example only, 1 plus root x minus 2, that we all have. Now what we have with us is that one function is constant and another function is a function of with a variable x. Now the domain of this function is what? Well, since ये constant है तो इसको डोमेन ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी इनपुट डालो आपको यही मिलेगा. It's just like consider a machine, आप जिसमें अगर आप कोई भी इनपुट डालो, लेट्स से आप एक खिलौना समझो, आप वो एक खिलौना है और उसमें आपके पास में 3 बटन दिए गए, तीनों बटन में से कोई भी बटन दबाओ वो आवाज करेगा हंसने का. छोटे बच्चों का खिलौना है. इफ यू इनपुट बटन 1, बटन 2 और बटन 3, it will only do laugh. What it will do? It will only laugh. So ये है वो constant function. Whatever you choose, क्योंकि बच्चे होते हो तो बच्चे कोई भी बटन दबाना चाहते हैं, बच्चों को नहीं पता ना, उनको लगता है कि there are different buttons, तो जितना बटन उतना ज्यादा एक्साइटमेंट. सो 3 में से कोई भी एक बटन दबाओ, बस आउटपुट उसका लाफ ही रहेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ द फंक्शन. सो वॉट एवर यू इनपुट गिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डोमेन सिर्फ और सिर्फ 7 ही रहेगा. That's it. But the domain in this case, g of x का डोमेन क्या रहेगा मेरा? g of x का डोमेन रहेगा, well, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, so I know x should be greater than equal to 2. यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा मिल जाता है 2, प्लस
infinity, 2 plus infinity. Now that I have my domains with me, मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा हूँ ना. सो लेट्स जस्ट टेक मल्टीप्लीकेशन. fg of x that is equal to f of x g of x. My f of x is 7, my g of x is 1 plus root x minus 2. Well, I'll multiply just 7 to this bracket, तो मेरे को ये मिल जाएगा x minus 2, and this is where I have to stop. इसके बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. And now let me just tell you the domain. Now domain of this f into g. अब अपने पास में एक बात है, हमेशा अपने को पता होता है कि इसका डोमेन जो रहेगा, वेल यहाँ पे एक्चुअली मैं डोमेन 7 बोल रहा हूँ, बट इसमें 7 लेने के लिए डोमेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका डोमेन में आप कुछ भी डालो आपको 7 ही आउटपुट मिलेगा. कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, सिर्फ और सिर्फ 7 मिलने वाला है ना. सो इसका मतलब इसका डोमेन तो वही है, मतलब 7 ही है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी डालो आप उसका डोमेन वही रहने वाला है. सो जो डोमेन इंटरसेक्शन रहता है अपना, इंटरसेक्शन जो रहता है अपना इनका सेट का, वो इनका डोमेन बनता है. इन सच केस multiplication of 7 to a function does not affect my new function. In such case multiplication of a new function does not affect my new function. देखो ना यहाँ पे कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा है. ये 7 हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बस 7 टाइम्स वो आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा ग्राफ में चेंज आएगा, बाकी मेरे आउटपुट्स कुछ चेंज नहीं हो रहे इतने, मेरे डोमेन्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. मेरे आउटपुट चेंज हो रहे हैं, मेरे डोमेन्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. ये 7 आने की वजह से मेरा डोमेन अफेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा डोमेन अफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब मेरा नया फंक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है उससे. एंड दैट इज वाई my domain will remain same as that of g of x, and that is 2 plus infinity. ये क्यों है, क्योंकि f का जो डोमेन है वो कुछ भी लो आप 7 ही देने वाला है. एंड f इंटू जी में आपके पास में एक ऐसी चीज है जिसका तो डोमेन है ही नहीं, ऐसा समझ लो आप. इसमें कुछ भी डालो आपको मिलेगा ही वही मिलेगा आपको. ऑलराइट, लेकिन g ऑफ एक ऐसा चीज है जिसका डोमेन एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे आप कंसिडर करो सिर्फ इसको, यहाँ वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही पार्ट है जिसके लिए डोमेन है. तो ये जो नया फंक्शन है इसके लिए डोमेन क्या रहेगा, इसी फंक्शन का डोमेन रहेगा ना. एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस, बिकॉज डोमेन में चेंजेस कैसा हो रहा है वो अपने को यहाँ पे समझने को मिलता है. डोमेन डज नॉट गेट अफेक्ट, डोमेन जो g का था वही f इंटू जी का रहेगा.